کشمیر کشمیر میرے کشمیر وزیر اعظم پاکستان کی طرح نہیں کھڑا، کشمیر کا سفیر بن کے کھڑا ہوا ہوں۔ خان کا کیا پائے گا؟ اے قابض کر آزاد مجھے، جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی، جس خاطر ہے میں نے نسلیں قربان کی۔ I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder. ہر سو میرے آگ لگی ہے، کتنا اور جلاؤ گے، چاٹوٹی وادی ساری، فکر ذرا اپنے بھی تو انجام کی۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ نیوز کشمیر بھارتی مظالم اور جبر کی جیتی جاگتی تصویر ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، ہمدردی کے دو بول بولتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کشمیر پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت نے اپنے تسلط کے پنجے مزید گاڑے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں پر جس طرح عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے، اس کے بعد دنیا جو انسانیت اور شخصی آزادیوں کی ٹھیکیدار بنتی ہے، کم سے کم وہ بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کی اس تذلیل پر ضرور کوئی ایکشن لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مفادات اور تعصبات کی ماری دنیا عالمی قوانین اور UN کی قراردادوں کی تلوار انہی کے سر پر لٹکاتی ہے جن سے مفادات کے حاصل کرنے کا کوئی جو ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے اس پار کے کشمیریوں کی اس وقت جو ہے وہ مودی کی ہندوتوا حکومت کے تسلط میں اپنے حقوق سرے سے کھو چکے ہیں۔ کشمیر کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں، زمینی حقائق تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیریوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان طے باتیں سب اس وقت مردہ ڈھانچوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہے۔ اب اس کی وجہ اگر بات کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی ہٹ درمی، اوبویسلی بھارتی ہٹ درمی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی عوام مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے دیں اور ان کو فراموش کر دیں۔ 5 فروری کا دن کشمیریوں سے محض یکجہتی کا دن جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کی یاد دہانی کروانے کا دن ہے کہ کشمیر کو اس کا حق دلانے میں ابھی بھی ہم ناکام ہیں۔ کشمیریوں کا سفیر بننے کے دعوے اور بھرپور تقاریر کر لینے کافی جو ہے وہ نہیں ہے، ہمیں کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہوگا، بلکہ ان کا حق جو ہے وہ ہمیں چھیننا ہوگا۔ یہ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہ غلام قادر صاحب موجود ہیں، فارمر اسپیکر ہیں آزاد جموں کشمیر، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ سردار عتیق احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر پرائم منسٹر AJ ہیں۔ راجہ فہیم کیانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کشمیری رہنما یونائٹڈ کنگڈم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ولید رسول شیخ ہیں، آپ حریت رہنما ہیں۔ تمام مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب گفتگو کا آغاز اگر آپ سے کروں، over 70 years have passed، اگر میں اس وقت آپ سے یہ پوچھوں، اور ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں at the expense of a rhetorical question، اس وقت میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کشمیر کاز کہاں کھڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ کشمیر کاز جو ہے ایک اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے کشمیری کہاں کھڑے ہیں، کشمیری تو اپنے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کشمیری جو ہیں وہ آج بھی اپنی جانیں دے کر، اور جو وہاں شہید ہوتا ہے اس کے لواحقین پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفنا دیتے ہیں، اور وہ جدوجہد جاری ہے۔ کشمیری کی جو ہندوستان کے ساتھ نفرت اور آزادی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح اس سے قبل وہ کھڑے تھے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 2 پہلو اور ہیں، حکومت پاکستان کا کیا کردار ہے اور بین الاقوامی۔ میں بین الاقوامی طور پر یہ بات کہوں گا کہ بین الاقوامی طور پر آپ اگر جائیں تو 5 اگست کے بعد جو ہمیں توقعات تھیں
کہ وہ ریئیکٹ کرے گی، اس طرح کی ریئیکشن سامنے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے نہیں آئی۔ جہاں تک پاکستان کی حکومت کے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی حکومت نے بڑا، اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے بڑا ریئیکشن شو کیا، آزاد کشمیر اسمبلی آئے، لیکن جب وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں آئے اور انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر میں یہ بھام پیدا ہو گیا۔ وہ تقریر ان کی یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہمیں قبول نہیں، لیکن اگر آزاد کشمیر کی طرف انہوں نے دیکھا ہندوستان نے تو ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ وہیں پہ تو تقسیم کی بات آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی کشمیر ادھر والا تم رکھو، ادھر والا ہم رکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، آج بھی میں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں صدر پاکستان تشریف لائے تھے، میں نے وہاں پہ بھی یہی سوال اٹھایا۔ میں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم نے گھڑیاں لگا دی ہیں، جی گن رہے ہیں، دن گن رہے ہیں، ان گھڑیوں کے سیل ہی خراب ہو جاتے ہیں، آج ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ جی کتنے دن ہو گئے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان موجودہ حکومت کی سفارتکاری کیا ہے کہ افغانستان پہ OIC کی کانفرنس اسلام آباد میں ہو اور کشمیر کے لیے 2 لفظ بھی نہ بولے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے، جو اپنا رول اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا۔ اور آج تو کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی واضح نہیں ہے کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ اور انٹرنیشنلی دیکھیں نا، 2-4 یہ فارن آفس سے کبھی کبھار کوئی بیان آ جائے تو اس سے مسئلہ کشمیر نہیں ہوگا۔ سردار تنویر صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے، تو حکومت سے بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور آپ نے کہا کہ جی ہمیں یہ آگے بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، وضع کریں، تو ان سے بھی پوچھیں گے کیا پالیسی ہے۔ میں ذرا فہیم صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ فہیم صاحب، پہلے سردار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو پہلے لے لیتی ہوں۔ سردار تنویر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح شاہ غلام قادر صاحب بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سالوں سے ہم یہی ہے کہ 5 فروری کو وہی روایتی تقریریں ہوتی ہیں، وہی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن obviously 5 اگست 2019 کے بعد سے ڈائنامکس بالکل مختلف ہو گئی ہیں ویزاوی جو سچویشن اس وقت آن گراؤنڈ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج جو یہ بات پوچھ رہے ہیں، بے شک یہ اپوزیشن میں ہیں، لیکن یہ بات وہ ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ کیا پالیسی کیا ہے ہماری ویزاوی کشمیر، حکومت کی اس وقت کشمیر پالیسی ہے کیا؟ دیکھیے، ایسے ہے کہ جو 5 فروری کے دن کی جو سگنیفیکنس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹ اس دن کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو 23-24 کروڑ لوگوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا، ہاتھوں کی زنجیر بنانا، کندھے سے کندھا ملانا اور یک زبان ہونا، اور تمام پارٹی کی جو پالیسیز ہوتے ہیں اور نظریات ہوتے ہیں اس سے بالاتر ہو کے پوری قوم ایک ہی بات کرتی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دو، کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تو اور دنیا کو ہم یہ باور کرواتے ہیں کہ کشمیر آپ کی توجہ چاہتا ہے، کیونکہ کشمیر اس تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈے میں سے ہے۔ تقسیم ہند کا ایجنڈا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیریوں کو ان کا یہ حق مل نہ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، آزاد کشمیر میں اگرچہ ابھی ہمیں 5-6 مہینے ہوئے ہیں، وفاق میں ہمیں تقریباً 3-3.5 سال ہو چلے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اقوام متحدہ ہو، 5 ماہ پہلے OIC نے بھی کشمیر کے حوالے سے بڑے ٹائم کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کے بھی اندر انٹرسٹ اور مفادات بہت حد تک چینج ہو چکے، وہ بھی ایک مردہ گھوڑا ہونے کے باوجود OIC نے بھی ہندوستان کی مذمت کی، اقوام متحدہ بھی مذمت کر رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود شاہ غلام قادر صاحب انتہائی ہمارے محترم ساتھی ہیں اور وہ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ابھی جسٹ ہم نے کوئی 1 ہفتہ پہلے کانفرنس کال کی ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، اور ہم اس بات کے اوپر متفق ہیں، ساری اپوزیشن حکومت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ہمیں پورے قومی لیول پہ بھی تمام پارٹیز کو بلانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے، ان کی بھی ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ملک کے اندر، ملک سے باہر ویسٹرن ورلڈ کے اندر امریکہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ پریشر بلڈ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، اگر دوسری جگہوں پہ ریفرینڈمز ہو سکتے ہیں، دوسری جگہوں پہ امریکہ آگے آ سکتا ہے، اقوام متحدہ آگے آ سکتا ہے، تو کشمیر سردار صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، اس وقت تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، جو اب آپ نے میرا غالباً 5 دن پہلے آپ لوگوں کی شاید یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں آپ نے یہ طے کیا کہ کشمیری لیڈرز جو ہیں
चाहे ऑपोजिशन के हैं या हुकूमत के हैं, हम अपना जो है वो किरदार खुद अदा करेंगे और हम अपना केस दुनिया के सामने खुद प्रेजेंट करेंगे। क्या आप नहीं समझते दिस इज टू लिटिल टू लेट? नहीं, देखिए, उसमें हम पूरी काम का एक हिस्सा है, चूंकि कश्मीरी पूरे पाकिस्तान के जिस्म में से आज़ाद कश्मीर जो है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, और हमारे एक बड़े हिस्से ने आके हमारे इस वजूद का हिस्सा बनना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर, क्योंकि बाबा कौम ने इसलिए ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, उसके लिए ये है कि कश्मीरियों ने अपना हिस्सा जरूर डालना है। लेकिन बहुत लेट नहीं आप ये कर रहे, 2.5 साल बाद ये ख्याल आ रहा है भी मरकज से भी जो हमारी कौमी पार्टियां हैं जी जी जिनका असर सूख ज्यादा है, आजाद कश्मीर के अंदर जाहिर है कि आप इंटरनेशनल को डायरेक्ट डायलॉग नहीं कर सकते, हमें अपनी वजारत खारजा की मदद चाहिए होगी, हमें अपनी कौमी इदारों की मदद चाहिए होगी कि उनके थ्रू हम अक़वाम आलम को हम ये बावर करवाएं और हम ये मजबूर करें कि वो अपना रोल अदा करें और हिंदुस्तान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस यूज करें कि वो अपनी। चलो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सरदार साहब। मैं ज़रा फ़हीम साहब की तरफ चलती हूँ। फ़हीम साहब, आपसे भी पहले तो ये सवाल कि इस वक्त अगर हम देखें कि शुरू कहाँ से हुआ कश्मीर का इशू, शुरू कहाँ से हुआ, एक इंटरनेशनल इशू था, फिर बायलैटरल इशू हुआ 2019 के बाद, इस वक्त वो बायलैटरल इशू भी नहीं है। आप क्या समझते हैं, और इसको क्योंकि आप डायस्पोरा का हिस्सा भी हैं, आप आए भी देखते हैं, इस वक्त अगर हम कहें, बात मैं आपसे पूछूं, सवाल करूं, कहां खड़ा है कश्मीर कॉज या कहां खड़ा है कश्मीर की तहरीक, कहां खड़ी है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। यहाँ पर यह बात होती है कि कश्मीर कॉज को आगे लेके जाने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए। पहली बात होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल प्ले करना चाहिए, फिर कश्मीरियों के रोल की बात होती है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान की हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान जब एक्टिव रोल प्ले करेगा तो ये बाकी जितने भी इसके सब नोट्स में ये सारे आ जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अभी मैं इस हुकूमत का जो पॉजिटिव ये काम है कि गुज़िश्ता में इस तहरीक में 22-24 साल से हूँ, कभी भी ये नहीं हुआ किसी वज़ीर ख़ारजा ने आके कश्मीरी डायस्पोरा के साथ जो एक्टिव लोग की मीटिंग की हो। पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा साहब जब अमेरिका से आए तो उन्होंने ख्वाहिश ये ज़ाहिर की कि हम कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मिलना चाहते हैं। हमने बड़ी तवील नशीस्त की, वज़ीर ख़ारजा साहब को तजावीज़ दी, वज़ीर ख़ारजा साहब ने वो तजावीज़ नोट भी की, और मैंने कहा कि आपकी कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है। पहली तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमने अपनी दिल की बात रखी। मैंने कहा कि आपके पास कोई एक ऐसा एनालिसिस फोरम नहीं है कि जहाँ पर आप हमारा एनालिसिस करें, हम आपका एनालिसिस करें कि हमने क्या अचीव किया और आपने क्या क्या खोया। उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि यूरोप बार के जितने भी सवाल खाने हैं इनके हवाले से आप बताएं हम कौन सी विंडो पे जाके नॉक, कौन सी दरवाजे पे नॉक करें जिससे वो ये दरवाजा खुल जाए। कहते हैं कि हमने एक कश्मीर डेस्क बनाया है फॉरेन ऑफिस के अंदर, सारी चीजें वहां से ऑपरेट होंगी। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप वहां पे आप भी अपनी शिकायत दर्ज करें। आज मैं ब्रेशिया इटली के अंदर मौजूद हूँ। कल यूरोप की तारीख का एक बड़ा जलसा आम इटली के शहर ब्रेशिया में होने जा रहा है, जिसमें पार्क के अंदर, यानी हॉल से भी कोई ऐसा हॉल नहीं था कि वो इतनी कैपेसिटी हम अकोमोडेट कर सके, हम पार्क में कर रहे हैं। उसमें वज़ीर ख़ारजा साहब को सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ के उनके सेक्रेटरी से उन्होंने कहा जी कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट इस डिपार्टमेंट में आगे कर दिया, फिर इस डिपार्टमेंट ट्रक की बत्ती के नीचे, ट्रक की बत्ती के पीछे में लगा दिया। हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की कि आप एक कश्मीर सोलिडेरिटी का वीडियो पैगाम पहुंचाए। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मैं लगा हूँ, ये वही कश्मीर डेस्क जो फॉरेन ऑफिस में। अब मुझे ये नहीं पता कि वज़ीर ख़ारजा साहब की अपने फॉरेन ऑफिस में कितनी ग्रिप है। मैंने सेनेटर मुश्ताक साहब को ये शिकायत की, उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयर करते हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी को, उन्होंने उनको बताया। तो ये हाल है कश्मीर के साथ सीरियसनेस की। लेकिन अफसोस मुझे भी इसके होता, मैं क्या वज़ीर ख़ारजा साहब का एहतसाब करूँ जब आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है, मैंने खुद उनके हक में एक बहुत अच्छी तकरीर की बर्मिंघम के अंदर, उनका ऑनलाइन जलसा हुआ तो मैंने उनको इन्विटेशन भेजी ऑफिशियल कि आप इस जलसे में आए। 3 हफ्ते उनके सेक्रेटरी ने तो मुझे जवाब तक भी नहीं दिया। फिर एक डेलीगेशन मिलना चाहता था, मैंने हर बार जो आखिर क्या हुआ कि जाती तलकात मैंने इस्तेमाल किए। उनका एक जाती जानने वाला था, उसने मुलाकात कराई, यानी कि उनके भी ब्यूरोक्रेट्स या उनका अमला उनके काबू में नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उस तरह आपको रिस्पांस नहीं मिलता। राइट, मैं जरा डॉक्टर वलीद साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। डॉक्टर वलीद साहब, आप क्या समझते हैं जो ये डिस्कनेक्ट है, क्या ये एग्जिस्ट करता है जो डायस्पोरा है और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, आप समझते हैं ये एक इशू है जिसकी वजह से कश्मीर कॉज ऑब्वियसली बहुत डैमेज हो रहा है?
मैडम देखिए ना, अगर आप हम मकबूजा कश्मीर वालों लोगों की बात लें, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है 1 लाख से ज़्यादा और 1,20,000 टॉर्चर केसेस, उसमें से जो हमने केस स्टडीज बनाई है विच यू कैन पुट टू इंटरनेशनल इक्विवेलेंस ऑफ पावर, उसमें हमने बड़ा काम किया है अफ्रीकली भी, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको 5 अगस्त के बाद कम्युनिकेशन चोक किया गया और हमारी दर्द थी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पाई थी, तो ये कियानी साहब हैं या और कुछ साथी हैं, ये वाकई दे आर बर्निंग देयर मिडनाइट ऑयल टू पुट आवर पेन इन इंटरनेशनल इक्विवेलेंस ऑफ पावर। दूसरी बात रही मैम जो आज़ाद कश्मीर की, यहाँ मतलब ये जो शाह साहब हैं हमारे बड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो हमारा काम है कुर्बानियाँ देना। क्या उसमें कमी आई? नो। मैंने एक पेपर लिखा रेजिस्टेंस, रेजिलियंस एंड फियर फैक्टर, उसमें मैंने 7,000 स्टूडेंट से, यूथ से मकबूजा कश्मीर में प्राइमरी डाटा पे एक स्टडी की और इंटरनेशनल स्टडी में आ गई। देखें, आपने जब ये बात की कि हम कहाँ हैं, हमने 4 जनरेशन में तहरीक चलाई, 5th जनरेशन में सक्सेसफुली इसको कन्वर्ट किया। मैंने एक पेपर लिखा डिफेंस यूनिवर्सिटी में, इंटरप्ले ऑफ सोशल मीडिया एंड सेंटिमेंट। आपने नए महाज खोलने हैं और नए महाज में डायस्पोरा हमारा सबसे बड़ा महाज है। हमारा महाज मीडिया का महाज है, वो हमारा महाज है जो आपकी दर्द को पुटअप करेगा। तीसरा, 75 लाख आबादी में 1.25 लाख शहादतें हुई 8.5% के हिसाब से, नंबर 1। नंबर 2, जब आप टॉर्चर केसेस की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट मैटर ऑफ मूवमेंट नाउ, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। जिनोसाइड को कैसे आप डिफाइन करते हैं? जिनोसाइड इज सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ एनी रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी, वो वहां हो रहा है। और उस सिस्टमैटिक में 5 अगस्त के बाद द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन इंटेंसिफाइड मल्टीफोल्ड्स। एक तो वो लोग जिनको स्टेट सब्जेक्ट किए तो हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट नीचे आया। दूसरा, जो यूथ हमारी फ्यूचर जनरेशन का प्रोडक्ट था, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बनाता था, वो उनमें से 92% यूथ चाहते हुई है और वो जो नई जनरेशन आनी थी वो नहीं आ पा रही है। तीसरा, जो हमारी ऑलरेडी किलिंग हुई है 2.5 लाख, उसको भी उससे निकाले। और जो इस वक्त तक 3,72,000 नई स्टेट सब्जेक्ट्स दी गई है उसको उसमें डिडक्ट करें तो फिर आपको एक क्लियर ब्लूप्रिंट पिक्चर आती है कि कश्मीरीज आर नाउ एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। नाउ एक सवाल जबरदस्त मैं आपकी डॉक्टर साहब आपकी तवासत से जी, आजाद कश्मीर के जो पावर कॉरिडोर्स है, इनका एक जबरदस्त रोल है। ये हमेशा कहते हैं हमें रोल नहीं दिया गया। क्या 5 अगस्त के बाद शाह साहब स्पीकर थे, मुस्लिम लीग नून के जो है ना प्रेसिडेंट थे, क्या 5 या 8 या 10 लाख लोग सिंपली मुजफ्फराबाद या पुंछ के सड़कों पे आए तो हम ये इंटरनेशनली कह सकते थे, ये मिनिमम कर सकते थे। उसमें से इसको किसी ने नहीं पूछना था या किसी से नहीं पूछना था। नंबर 3, जब आप ब्लीड कर रहे हैं, जब आपके लोग मर रहे हैं, तो फिर उस वक्त आप ये नहीं कहते कि मैंने इस पे पानी डालना है, मैंने इसको मरहम लगाना है, मैंने उसको गाज लगाना है। फिर जो आपसे हो सकता था कम से कम वो तो करते। और फिर अगर एज ए स्टेट पाकिस्तान उस पे कौन प्रेशर डालेगा? उस पे प्रेशर डालेगा आजाद कश्मीर के गवर्नमेंट, आजाद कश्मीर का अवाम, आजाद कश्मीर के मासेस कि वो कुछ डू मोर करे। बाकी डॉक्टर साहब आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट, लेकिन आपने बहुत पर्टिनेंट सवाल उठाए हैं, बहुत पर्टिनेंट सवाल उठाए। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद शाह साहब की तरफ भी आऊंगी और जो आपने सवाल उठाए हैं उनकी तरफ भी जो है वो बढ़ेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाह साहब, पहले तो जो डॉक्टर साहब के गिले हैं जो आपसे मुकामी लीडरशिप से वो कर रहे हैं,
अगर उसका जवाब देना चाहें, जो वो कह रहे हैं कि जी शो ऑफ पावर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लिंक नहीं कर सके, ज़रा पहले मैं उसका जवाब देखें ना, डॉक्टर साहब का गिला बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये जो कश्मीरी डायस्पोरा है ये कहाँ की है? ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जो बैरून ममालिक में हर जगह, ऑक्युपाइड कश्मीर के बहुत कम लोग हैं और वो प्रोफेशनल्स हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते। ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के जो डायस्पोरा है वो लोग वहाँ पे पूरे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जहाँ कहीं भी मुजाहरे करने हो, कोई सेमिनार करना हो, ये कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के लोग ही करते हैं। और उसमें कभी कभार वो ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को चूँकि अपने मुल्क वहाँ ऑक्युपाइड कश्मीर वापस जाना होता है तो वो उनके लिए मुश्किलात बहुत होती हैं। दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस कश्मीर के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, अपने अपने लेवल पे करते हैं जब ज़रूरत। हाँ, जिस मैंने ये डॉक्टर साहब का ख्याल था कि जी जिस बड़ी तादाद में लोगों को करना चाहिए उस तरह नहीं हो सका, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी कोई वाक़या हिंदुस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर में हो और रिएक्शन ना आए। ठीक, फ़हीम साहब की जानिब चलती हैं। फ़हीम साहब, एक सवाल जो अब उठ रहा है वो ये है कि बुरहान वानी की शहादत के बाद हमने देखा कि यूथ जो है वो कश्मीर का वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे था, वो बिल्कुल इंडिया को हेड ऑन जो है वो ले रहा था। उसके बाद 5 अगस्त हो जाता है और उसके बाद जितने लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, उसको इनकारसरेट कर दिया जाता है, गिलानी साहब की वफ़ात हो जाती है। साथ ही साथ जिस तरह भी बात हो रही थी कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है उसका पहले ब्लैकआउट होता है, फिर अब ब्रेक डाउन है, ब्लैकआउट नहीं है ब्रेक डाउन है। ऐसे में जो ये मूवमेंट है आगे कैसे बढ़ेगी और आगे इसका फ्यूचर क्या है, किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखेंगे माजी में हमने देखा कि इंदिरा चैटर्जी ने मास ग्रेव्स को फाउंड किया, कितने बड़ा कत्ले आम हुआ, दुनिया के नजदीक अननोटिस गया। ठीक है, बाद में एक रिसर्च पेपर छपा, उस पर डिबेट हुई, हमने देखा कि लाखों कश्मीरियों का कत्ले आम हुआ, कोनान पोशपुरा का वाकया हुआ, कई ऐसे वाकयात मास एकर्स में गिनाना शुरू करूं, सोपुर, गोकदल, एक लंबी लिस्ट है, लोगों को नाम तक भी नहीं याद जो इस मूवमेंट के साथ मौजूद हैं। उनको तो पता है लेकिन आम पब्लिक में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। कितने फेक अकाउंटर्स हुए, कितने कत्लेआम हुआ, किसी ने अभी आप देखें ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की जो कुव्वत है किस तरीके से भारत को हाल ही में जब अल्ताफ अहमद भट्ट और इसके साथियों को, निहत्थे साथियों को शहीद किया गया और फेक अकाउंटर्स के अंदर उनके लवाकिन जब बैठ गए तो अपने आप को डिजिटल इंडिया कहने वाले, सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहने वाले 3 दिन के सोशल मीडिया कैंपेन के सामने धड़म करके गिर गए। आखिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनकी बॉडीज उनके हवाले की। तो एक बहुत बड़ी ये फतह है हमारी कि इतनी बड़ी जो इकोनॉमिकल मसल्स रखने वाला मुल्क और सबसे बड़ी तजारती मंडी रखने वाला मुल्क जो प्रेशराइज करता है बरतानिया को, जो प्रेशराइज करता है यूनाइटेड नेशन को, जो प्रेशराइज करता है अमेरिका को, लेकिन वो श्रीनगर के अंदर बैठे हुए सख्त सर्दी के अंदर चंद औरतों ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। तो वो अब सिलसिला अब नए दौर में हम शामिल हो चुके हैं। अब एक्टिवली जो सोशल मीडिया देखें, इसके बावजूद उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके हक में जाते हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन का मुल्क है, अगर वो कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं, जो नैरेटिव लॉन्च करते हैं, उसकी मतलब इम्पैक्ट ज्यादा होता है, लेकिन उसके मुकाबले झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। सच थोड़ी तादाद में भी शेयर हो लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। और जो फोर्स नैरेटिव है उसका वो दुनिया ने रिजेक्ट किया है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं कि जो इंडिया का एक नैरेटिव है गुज़िश्ता 73 साल से, कश्मीर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। इस नैरेटिव को इकोनॉमिकल मसल रखने के बावजूद इंडिया दुनिया के किसी एक मुल्क से नहीं मनवा सका कि जो ये कहे कि हम कश्मीर को भारत का हिस्सा समझते हैं। ये कश्मीरियों की बड़ी फतह है। इसके देखें, लोग हमसे सवाल करते हैं, आप देखें हैदराबाद का इशू किधर गया, कोई डिस्कस करता है? जूनागढ़ का इशू किधर गया, कोई डिस्कस करता है? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत चाहता है कि इशू को इलिमिनेट किया जाए, वो बायलैटरलिज्म के पीछे के आड़ लेता है, उसका कवर लेता है। सब कवर लेने के बावजूद इंटरनेशनल कॉरिडोर्स में भारत एक्सपोज हुआ है। जितना भारत 5 अगस्त 2019 के बाद एक्सपोज हुआ है, शायद हमें ये बैलेंस शीट उठाए बाजी की और इसकी तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। क्या आपका पॉइंट आ गया? सरदार अतीक अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सरदार साहब आपसे भी यही सवाल कि 5 अगस्त के बाद जो सिचुएशन नजर आ रही है, जिस तरह कम्युनिकेशन का जो है वो ब्रेक डाउन है, लीडर्स जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं नजर नहीं आ रही, इनकारसरेटेड है, गिलानी साहब की वफात हो गई है, तो आप कश्मीर कॉज या जो मूवमेंट है आगे किस तरह इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं?
या फिर ये कहा जाए, जिस तरह ये कहा भी जा रहा है, समझा जा रहा है शायद कि परहैप्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, क्या ये सही है या आप समझते हैं कि ये एक अभी इस वक्त एक ट्रांजिएंट फेज है और ये फिर से एक स्पाइक आएगी? अभी इतनी देर भारत जो है वो क्लैंप डाउन नहीं रख सकेगा, ये कभी ना कभी खत्म होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि हिंदुस्तान इस सारी बात को अपने कंट्रोल में कर लेगा और ये उनके पास आखिरी हथियार था जो उन्होंने 370 और 35 को एब्रोगेट करके इसकी एनेक्सेशन की और डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन चेंज करना शुरू किया। लेकिन आप देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के 3 इजलास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हुए हैं कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 के बाद, और अभी पिछले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। ये लेटेस्ट है लास्ट वीक का। ये जो आलमी सतह पर जो सूरत हाल है वो हिंदुस्तान की इन इक़दाम को इन ए वे इम्प्लाइडली इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और दूसरा पहलू है मकामी सतह का, वो है कि वहाँ पर तहरीक की क्या सूरत है। सैयद अली गिलानी साहब मौजूद नहीं हैं, यासीन मलिक साहब जेल में हैं, मीरवाइज साहब नजरबंद हैं, सारे लोग, शबीर शाह साहब और तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे जो है वो पाबंद हैं। इस सारी बात के बावजूद आप देख रहे हैं कि हर रोज एक दो शहादतें हो रही हैं और हिंदुस्तानी फौज वहाँ आपको बेबस दिखाई देती है। और तहरीक जो है वो बिल्कुल अगली नस्ल ने पूरी तरह उसको संभाल लिया हुआ है। और वैसे भी जब आप तहरीक का एक बेहतरीन बैरोमीटर ये है कि ये देखा जाए कि क्या हिंदुस्तान ने फौजें कम की हैं, क्या हिंदुस्तान ने अपना एग्रेशन कम किया है, क्या हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल इन्होंने अपनी कार्रवाइयों में कोई कमी की है। अगर उन कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है, अगर अफवाह की तादाद में इजाफा हो रहा है, बाहर से गैर कश्मीरी को लाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि का लेवल बढ़ गया है। खुदा के फजल करम से वक्त के साथ साथ मजबूरियां अपनी है, तहरीक की अपनी मजबूरी है, हुकूमत पाकिस्तान का रोल अपना है जिसे बेहतर तरीके से अदा होना है, उसे अदा करना चाहिए। बेशुमार बातें ऐसी करने वाली हैं कि जो हम नहीं कर पाए उन्हें करना चाहिए ताकि कश्मीरियों की ज्यादा मदद हो सके। लेकिन ये किसी सूरत में ये समझना कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये बिल्कुल ऐसा मफरूजा है कि इसका तहरीक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। 6 लाख जाने जिस काज के लिए कुर्बान कर दी जाए चंद सालों में, उस काज को कभी खत्म किया जा सकता है, उस काज को कभी रोका जा सकता है। दुनिया की किसी कौम की जिंदगी में औरतों ने, बच्चों ने इतनी कुर्बानी की है, मर्दों के साथ साथ जितनी ये कुर्बानियां हुई है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि कश्मीर की जिंदा है, पूरी तरह मौजूद है। और हिंदुस्तान आप देखते हैं कि इलाकाई तौर पर भी मैं समझता हूँ कि मुकाबलतन पाकिस्तान की सूरत कंपैरेटिवली बेहतर हुई है माजी के मुकाबले में। हिंदुस्तान का सारा बॉर्डर आपको गैर महफूज दिखाई देता है। हिंदुस्तान 2024 अब के करीब 2 दर्जन के करीब रियासतें हैं जिन्होंने अपनी डेडलाइन मुकर्रर की हुई है कि वो रेफरेंडम करवाएं या कुछ करें, लेकिन हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं। उधर चीन के साथ उनका तनाज़ा देखिए। नेपाल जैसा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान की फौज पर फायरिंग कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की अपनी सरहदात गैर महफूज हैं, दाखिली तौर पर दर्जनों तहरीकें चल रही हैं कश्मीर के अंदर फौज। सरदार साहब, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन एक जो बिल्कुल ये हम हमेशा ये बात करते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे बलोचिस्तान या कोई मसला उठता है तो हम ये कहते हैं कि हमारी तो इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हैं जिसको इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइंस इंडिया की हैं, लेकिन इंडिया ने उन पे काबू एक तरह पाया हुआ है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है जो बात होती है कि जी क्यों इसको जो है उतनी ट्रैक्शन नहीं मिल रही, वो बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है। आई मीन ये जो मफादात की जो ये सारी आपका जो कलूजन है उसको आप जो है वो रद्द नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं होती जिस तरह शायद हम सोच रहे हैं, या हम जिस तरह कह रहे हैं कि इंडिया की सुबकी होगी उस तरह नहीं हो पाती, क्योंकि दुनिया उनका साथ देती है। मैं आपकी बात से इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि आलमी बरादरी ने मगरबी दुनिया में हिंदुस्तान के बेशुमार सियासी गुनाहों पर पर्दा डाल के रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से खोखला नहीं हो रहा, अंदर से कमजोर नहीं हो रहा। तहरीकें जो हैं, ये जो चाइना के साथ पंजा आजमाई हुई है, ये जो मेघालय और दूसरी स्टेट जिनके अंदर सूरत हाल आप देखते हैं कि क्या है कि खालिस्तान का रेफरेंडम आप देखते हैं कि बरतानिया जैसा मुल्क जिसके साथ कितनी गहरी दोस्ती है हिंदुस्तान की नस्ल दर नस्ल की, वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना पड़ा रेफरेंडम के लिए, सिखों को वोट देने के लिए। तो सारी दुनिया के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ पर। तो साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करती, लेकिन फ्लिप साइड ये भी है
कि यूएई जैसा मुल्क अब जा रहा है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दूसरी फ्लिप साइड ये भी है। जी मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ओआईसी का रोल मुतासर हो सकता है, वो सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो एक्सपोज होता जा रहा है वो सिर्फ कश्मीर की वजह से नहीं है। मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान दाखिली तौर पर भी हम हिंदुस्तान की किसी तोड़ फोड़ में शरीक और फरीक नहीं है। हमने हिंदुस्तान को डिसइंटीग्रेट हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से यशवंत सिंह जैसे लोग खशवंत सिंह जैसे लोग जब ये कहें कि ये एंड ऑफ इंडिया अगर वो लिख पढ़ के इस कंक्लूजन पर पहुंचे, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की तहरीक के जो मुस्बत पहलू है वो भी अपनी जगह मौजूद है। जो वीक पहलू है मे भी कि हमारी तरफ से कोई कमजोरी हो, हुकूमत पाकिस्तान को मजीद कुछ काम करना हो जो ना किया जा रहा हो, बेशुमार बातें जो तजावीज़ के जुमरे में आती हैं जिसको बेहतर करने के, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर आप देखें तो इस सारी रिप्रेशन और ऑपरेशन और सप्रेशन के बावजूद तहरीक जो है तो उसकी निजामत का लेवल अपनी जगह मौजूद है, तहरीक जारी है और हिंदुस्तान को किसी दाखिली बात पर वहाँ कोई कामयाबी होती दिखाई नहीं देती। कामयाबी होती दिखाई नहीं देती। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर वलीद साहब के पास जाएंगे, उनसे कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनवा देते हैं आपको कि इंडिया में इस वक्त क्या कहा जा रहा है। जो ये सारा इकदाम हुआ है उसके हवाले से, कश्मीर का जो इकदाम हुआ है उसके हवाले से ऑपोजिशन इंडिया की क्या बात कर रही है, ज़रा सुन लेते हैं। We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistake in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes, what are the mistakes? I have just told you. You have brought China and Pakistan together. I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder. डॉक्टर साहब, आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे चाहूंगी, क्या कहेंगे इस पे? मैडम, मैंने एक हाल ही में एक बुक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक स्टडीज ने छापी है, उसमें मेरा एक पेपर है इंडियन रिलेशंस इन कंपैरिजन टू विद हर नेबर एज कंपेयर टू इंडियन विद हर नेबर्स। तो ये जो रीजनल शिफ्ट आया है उसमें जो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन है, मैंने ये फॉरेन ऑफिस में भी बात की है कि हम जब सीटो सेंटो वार अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट कम्युनिज्म है, अमेरिकन ब्लॉक में शामिल था, तो कश्मीर हमारा सेकंड प्रायोरिटी पे था। नाउ वी आर एन एलाई ऑफ चाइना, एक रीजनल शिफ्ट आया है, एक नया रीजनल इमर्जिंग सुपर पावर है। तो इसका एक जोसेफ माई का एक मॉड्यूल है, कोरिलेशन मॉड्यूल, कि उसमें अगर आप किसी मुल्क को फ़ायदा देता है तो वो भी आपका फ़ायदा दिया। तो क्या आप सिक्योरिटी इश्यूज़ में, अगर आपने हाल ही में सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन दी है तो उसमें आपने कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखा है, तो क्या चाइना पाकिस्तान रिलेशन में आप कश्मीर से कोई इंसेंटिव ले पाएंगे? मेरी ये होप है इसमें। दूसरा ये है कि रॉ इमोशन इज ऑलवेज ब्लॉक ऑब्जेक्टिविटी। हमारा हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, जो मसलन मैं कर सकता हूँ मुझे वो करना चाहिए, और जिसके लिए, और अगर मुझे और कुछ करना चाहिए उसके लिए मैं जस्तजू करता हूँ। मसलन कियानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये इंटरनेशनली कंपेन कर रहे हैं मसले कश्मीर को इंटरनेशनल इक्वलेंस ऑफ पावर में जो है वो आगे ले जाने के लिए। तो ये इनका काम बड़ा ही अप्रिशिएट है, क्योंकि ये उस वक्त अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा है जब हमारी कम्युनिकेशन है ही नहीं कि जहाँ से हम पुट करेंगे पैन। दूसरा, जब आप ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को तो मुझे उसके लिए भी लिवर चाहिए। लिवर आप भी है, मीडिया लिवर है, मीडिया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, मीडिया आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट लिवर है। वो मुझे सिफारिश करेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, मैं उनको बता दूंगा कि भाई ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल है इट इज़ नॉट एनफ, आई नीड लिटिल मोर। लेकिन उसके लिए भी मुझे एक लॉबी चाहिए। वो लॉबिंग का किरदार ये अदा नहीं कर रहे हैं और आज तक भी नहीं कर सके। तीसरा, इनको ये प्लीज बता दें, ये जो 5 अगस्त का वारदात हुई है मुकदमा कश्मीर के हवाले से, ये लीनियर सिस्टमैटिक और हर किसी गवर्नमेंट ने की। ये जो इस वक्त राजीव गांधी चला रहा है, तो सबसे पहले तो जो हमारा वज़ीर आला में चेंज हुआ और सदर रियासत गवर्नर बन गया, ये जवाहरलाल नेहरू के इरा में बन गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट लागू हो गया इंडिया में, कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का कानून, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हो गया।
پھر شیخ عبداللہ کے اٹھا کے 53 میں گرفتار کر کے 75 کا ایکارڈ اندرا بولا ایکارڈ ہوا. ہر کسی نے یونین لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ میں اپنا شیئر کیا اور الٹیمیٹلی ہندوتوا نے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ بنا کے ووٹ بک بنا کے اس کو کیش کیا. اس کو اگر آپ پلیز یہ اگر اس کو پڑھیں گے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ یہ نئی پہلی دفعہ ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہماری وہی دلیل ہے. میری میڈم آپ کی وساطت سے اس میڈیا کے تھرو میں ایک بات کائنڈلی کرنا ضروری چاہتا ہوں کہ when you repeat the same tests, result will be same. You have to change your tests, result will be different. Otherwise, we are sailing on the same boat and it will be always sailing like this. Please control your raw emotions and transform in some tangible support. Tangible support. بالکل. And state can do it. Right. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات بھی کی, لابینگ کی بات کی اور بہت ساری جو ہے وہ میں ذرا کیانی صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں اس پہ. کیانی صاحب, ڈاکٹر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی اسٹرانگ لابینگ کی ضرورت ہے, ٹیکٹکس جو ہیں وہ چینج کرنے ہوں گے, سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے جیسے مسعود خان کا کیس آپ لے لیں, انڈین لابی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, انڈین لابی نے کنونس کر لیا سینیٹرز کو کہ جی آپ اس پہ جو ہے وہ آبجیکشن لگائیں, گو کہ ہماری اس وقت فیور میں جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے, بٹ ایک نیوسنس ویلیو تو رکھتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ڈائسپورا ہے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح انڈین ڈائسپورا ایکٹیو ہے؟ یہ آپ سے ایک سوال ہے. دیکھیں کہ ویسے یہ سوال اگر آپ گزشتہ 5-6 سالوں سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو جتنے تاریخی طور پر جو کشمیری پاکستانی ڈائسپورا نے موبلائزیشن دنیا بھر میں کی ہے اس کی مثال ہی ملتی ہے. اگر نریندر مودی 13 نومبر 2015 کو ویمبلی اسٹیڈیم میں جلسہ عام کرتا ہے اور برطانیہ کے یورپ کے تمام بزنس مین اس کو ویلکم کرتے ہیں اور پاکستان انڈین ہائی کمیشن میں تقریباً 300 بندے انڈیا سے آتے ہیں جو اس کے وزٹ کو پلان کرتے ہیں, تو وہ اگر 10-15 ہزار بندے اگر اکٹھے کرنے میں, وہ تو ایک کلچرل شو بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ کیا جائے. اس کے مقابلے میں باہر ہزاروں کشمیری پاکستانیوں نے سخت سردی کا مائنس ٹیمپریچر تھا, 13 نومبر فرائیڈے کا دن تھا, ورکنگ ڈے تھا, فرائیڈے کی رات کو تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. پھر 5 اگست کے بعد جو 15 اگست کو 5 اگست 2019 کے بعد اقدام ہوا, 15 اگست 10 دن کے بعد آپ کو پتا ہو کہ 11 یا 12 اگست کو عید تھی, یعنی 2 دن کے نوٹس کے اندر 15 اگست کے بعد 40 سے 50 ہزار آدمی اس مظاہرے کے اندر اکٹھے ہوئے. اور اس طرح کا منظر نامہ جو پرانے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. میں جو اصلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ کا جو رول ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیڈرشپ کی جو انکریجمنٹ ہوتی ہے, یقیناً 15 اگست کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا اکٹھے ہوں, انہوں نے ایک سپورٹ کی جو اسٹیٹمنٹ دی, اس سے ایک بڑی موبلائزیشن بھی پیدا ہوئی اور لوکل تمام گروپس نکلے. لیکن شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم ساری قیادت اکٹھے ہیں, واقعی ہم ساری قیادت اکٹھے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں بیس کیمپ کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا یہ کام بنتا تھا جتنا بھی کشمیری ڈائسپورا ہے, یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ ملینز لوگ یہاں پر 1.5 ملین لوگ ان کے یورپ میں رہتے ہیں, تو بڑی موبلائزیشن کر سکتے تھے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. یہ ایک ہوتی ہے ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. اگر یہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم 1 ارب روپیہ انٹرنیشنل لابنگ کے لیے ہم رکھتے ہیں کہ ہم سب کچھ چیزیں اپنے ہولڈ میں رکھتے ہیں, بیس کیمپ کی حکومت. رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا جو آپ نے سوال اٹھایا. میں ذرا شاہ صاحب سے لے لوں کیونکہ بالکل آخری 1.5-2 منٹ رہ گئے. جی شاہ صاحب اگر اس کا جواب دینا چاہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح ڈائسپورا کو آپ لوگ موبلائز نہیں کر پائے جس وقت؟ دیکھیں نا, یہ کینی صاحب تو خود اس بات کے گواہ ہیں کہ 5 اگست کے بعد لندن میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تو تمام آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز اس میں شریک ہوئیں. اس میں اس وقت کے وزیر اعظم بھی شریک ہوئے, اپوزیشن لیڈر بھی شریک ہوئے, میں بھی شریک ہوا, باقی جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی شریک ہوئے, تو ساری لیڈرشپ شریک ہوئے. ڈائسپورا نے بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے, لیکن وہ مظاہرے ہو گئے لیکن اس کے بعد پھر رک جاتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کشمیر کا کہ ابھی تک واضح ہمارا وکیل ہے. دیکھیں, آپ کو یہ بات کا تعین کرنا پڑے گا. آپ جب ایک وکیل مقرر کرتے ہیں تو وکیل جو ہے حکومت پاکستان ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کشمیریوں کا وکیل ہے. اب اسٹیٹ آف پاکستان کی پالیسی ابھی تک جو ہے وہ کبھی سامنے آ کے کوئی کھیلتے ہیں اور کبھی وہ بالکل بھول جاتے ہیں. جب وہ بھول جاتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے وہیں رک جاتا ہے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے پھر بیک برنر پر چلا جاتا ہے.
तो इनको हुकूमत पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी वाज़े करनी होगी और कश्मीरियों को एतमाद में लेके पॉलिसी बनानी। ये जो आइसोलेशन में पॉलिसी बनाते हैं और आइसोलेशन में सडनली पता लगता है ये कुछ कर रहे हैं जी, कि जी वहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, जी वहाँ सेमिनार कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी कहाँ है? राइट, ठीक, ये इशू है सबसे एक वो डिस्कनेक्ट जो है वो लीडरशिप का और मतलब पाकिस्तान की हुकूमत का, डायस्पोरा का और कश्मीरी लीडरशिप का जो है वो नजर आता है। ऑन दैट नोट हम प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ मूव करते हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वलीद साहब आपका बहुत शुक्रिया और फ़हीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह।